नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज रामायण उपर आधारित सुंदर प्रसंग रही। कौन पाई शिवधनु भग्न करागला अनेक मतामत रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानिचंती ब्रह्मदेव अद्भुतमय स्वर्गरे बाउंश निर्माण करथिले। से बाउंशर नाम अजगब। विश्वकर्मा दुईटी धनु प्रस्तुत करथिले, कुदंड पिनाक धनु। शंकर भोलानाथ नीलकंठ पिनाक धनु धारण करी त्रिपुरासुर को बध कले। तप करने विशेष भाव में शिवशंकर भल पाती कौन करेंगे से अद्भुतमय धनु को परशुराम को प्रदान करते। से परशुराम तांकर प्रिय शिष्य जनक को प्रदान करते। जनक से धनु को पूजा करुले पाखरे रखुले। बाल्य अवस्था जितेबाला सीता माता पेंडु खोजापी से गृह मध्य प्रवेश कले से धनु को दुई हाथ में टेकी धरिले। जहाँफल जनक पिता थिले ना अद्भुतमय शर्त रखिले जी स्वयंवर धनु को उठेबे गुण प्रयोग करेंगे तांको मो ज्वाई रूप ग्रहण करी। यही प्रसंग रही आपण मैंने जानी। तेबे कौन पाई भग्न करागला धरणी माता सुंदर भाव में भगवान को प्रार्थना करुचंती जदि यही शिवधनु भग्न न हुए यार ओजनर भारा सह्य करें। पुणी जदि यही धनु भग्न न हुए प्रभु श्रीराम सीता मातांकर मिलन घटब नहीं। पुणी भगवान मध्य चाहूले शिवधनु रही विष्णु धनु रही जदि यही धनु भग्न न हुए शंकर भोलानाथ विष्णु भगवान मध्य द्वंद्व सृष्टि हो पारे। तेणु निश्चित भाव में भग्नर आवश्यकता रही। यही अनेक प्रसंग रही। वर्तमान सीतामाता को हासिल करने अनेक वीर राजागण उपस्थित होते। कई कई मत दिखती बाणासुर कहते आमे दुए शिव भक्त ना या को स्पर्श करवा ठीक नुह भग्न करवा ठीक नुह। क्या को कहते रावण को कहते। रावण मध्य चेष्टा करुले सीतामाता को पाइबापी पत्नी रूप में पाइबापी चेष्टा करुले। अतीव रमणीय सत्वगुण को धारण करते से मध्य असफल हेले। यही समय कथोपकथन प्रक्रिया आरंभ हो गला। जड़े ऋषि राजर्षि आउ जड़े ऋषि को कहते अर्थात जनक ऋषि विश्वामित्र ऋषि को कहते अनेक वीर माने राजा माने यही धनु को उठाई पारि नथिले असफल हेले। ये धरा पृष्ठरे वीरशून्य हो गला कि क्षत्रिय मानकर तेज नाही कि जेतेबेले एई भली शब्द प्रयोग करुथिले
ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ବେନି ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଧନୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜନକ ରାଜା ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶିବଧନୁ ରହିଥିଲା ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ରାମ ସ୍ଥିର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅସ୍ଥିର। ରାମ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ନା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କଦାପି ବିଲଶୂନ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏହି ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନଗରରେ ଅନେକ ବୀରମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେହି ନଗରବାସୀ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୀରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଳକ ସତରେ କ'ଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ କି? ମନକୁ ଆସିଲା। ଜନକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁନୟନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଦେଶ ଦେଲେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମକୁ, ଯାଅ ଏହି ଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କର, ଉଠାଅ। କୋମଳ ହସ୍ତରେ ଏମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ କି? ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ନା। ପୁଣି ସୀତାମାତା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସଖୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ। ବା ବିଧାତା, ବା ଅଦ୍ଭୁତମୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୋର ପତିଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ କାମନା ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ହେ ମାତା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ମୋର ପତିଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶିବଧନୁକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ଶିବଧନୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଜନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉ କଦାପି ସେମାନେ ଉଠି ନ ପାରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ଧନୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଓଜନ କମିଯାଉ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କଥା କହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମୋର ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ, ତ୍ରିଭୁବନର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ରାମ ସ୍ଥିର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ପଡ଼ି ଏଇଭଳି ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ? ଗୁରୁ ହିଁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଭଳି କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅଗୋଚର, ଜଇଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସୁର।
संगे संगे श्रीराम को आदेश देले जाओ शिवधनु को उठाओ भग्न कर। गुरु जितेबाला आदेश देले कौन करेंगे शिष्य गले से धनु को उठेले जितेबाला गुण प्रयोग करते भग्न हो गला। शिवंकर रथर चक सूर्य चंद्र अटंती धनुर मुनियांश अग्निदेवता विराजमान करती धनु तीर जमवायु रही था। एसबू कथा आपण मैंने जानी पुणी त्रेता जुगर आयु 10,000 वर्ष रही श्रीराम 11,000 वर्ष पर्यंत धरापृष्ठ रही दुष्ट मान संहार करने संगे संगे भक्त मानकर कल्याण करते। गुरु वर्तमान आदेश देइचंती शिष्य धीरे धीरे गले एवं जितेबाला से धनु को उठे गुण प्रयोग करते भग्न हो गला। से धनु भगवान पाद को स्पर्श करी मुक्ति पाईगले। जितेबाला धनुटी भग्न हो गला शब्द आरंभ है त्रिभुवन कंपिबा को लगिला। सही परशुराम महेंद्रा पर्वत निकटले तप करुले तप भग्न हो गला। क्रोधान्वित हुई से स्थान जो स्थान श्रीराम भग्न करते ना उपस्थिति जाहिर कले भयंकर भाव कटुवाक्य प्रयोग करते मु धरापृष्ठ 21 थर निक्षेत्रीय करी शिवंकर धनु को जी भग्न करी दंड देवी। शेषनाग अंश विशेष लक्ष्मण सुंदर भाव कथोपकथन करुले जी प्रकृत वीर निजर प्रशंसा करती नहीं। हाँ यह ही सत्य 21 बार निक्षेत्रीय करते किंतु से समय मोर भाई श्रीराम नथिले। यही भाव में जितेबाला कथोपकथन आरंभ होता भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो गले। दंड देवाई जितेबाला चेष्टा कले तथापि लक्ष्मण जुक्ति करुले मोर भाईर भूल कौन। अरे बहुत दिन पर्यंत ये धनु रही पुराणा धनु हो जाइए आम क्षत्रिय ना क्षत्रिय माने धनु अस्त्र शस्त्र सहित अभ्यास करती भग्न हो गला। काउरिया काठी परी भग्न हो गला। मोर भाईंकर दोष कौन रही जितेबाला सान भाई को उपरे परशुराम एते मात्रा रे लागिगले। यही समय बड़ भाई श्रीराम प्रार्थना कले मोर सान भाई जहाँ किसी भूल करिसंती मते ही आपण दंड दे पारंती तार समस्त दोष को क्षमा करंतु प्रार्थना कले ना। भगवान तो चाहते षष्ठ अवतार परशुराम थिले सप्तम अवतार आविर्भाव हो सारी सप्तम अवतार रे श्रीराम धरापृष्ठ को आसी सारी श्रीरामकर एबे अद्भुत नीला प्रक्रिया आरंभ हम तेणु भग्न करागला। यही समय रे परशुराम कहले ठीक अच्छी जदि से धनु को भग्न कर पारिला आ गोटे धनु रही ना विष्णु धनु ये धनु को भग्न कर। श्रीराम कौन करेंगे ठीक अच्छी जेतेबेले से धनु को स्पर्श करिले गुण चढ़ाई देले भगवान स्पर्श करुचंती परशुराम प्रदान करुचंती। परशुरामकर तेज गुण को राम हरण कर दिव्य दृष्टि
परशुराम जानीगले अरे ये होचंती परम ब्रह्म एबे मोर आउ किछि कार्य नहीं निश्चित भाव में मु तप करी ए स्थान रे न रही कठोर तप करने जीवी जानीगले ना जतबेले भगवान धनुरे गुण चढ़ाई देले परशुराम को पचारुचंती एबे कहाँ को उपरे प्रयोग करी सुंदर भाव में परशुराम कहते ठीक अच्छी एबे मो उपरे बाण प्रयोग करंतु मोर अहंग रूपक असुर उपरे बाण प्रयोग करंतु अर्थात मोर अहं को विनाश करंतु ताई घटिला शेष परशुराम श्रीराम लक्ष्मण को दर्शन करी कठोर तप करने प्रत्यागमन कले पड़गले ना तापर कौन घटव बरणमाला प्रक्रिया आरंभ हम से सीतामाता गुरु सतानंद आदेश दौरान जाओ श्रीरामंकर गलारे बरणमाल पिंधातु सीतामाता ठारू श्रीराम शरीर विशालमय रही उच्चता विशेष भाव में अधिक रही बरणमाला पिंधा असंभव कई कई मत दियंती सखी कहते श्रीराम को सीता बरणमाला कुआडे फिंगिदेले कुआडे हजेदेले फिंगिदेवे कि भाव में यही कथा शुणा मात्र के राम खोजा आरंभ कले जितेबाला जड़े कौन सी द्रव्य खोजा चेष्टा करती मुंड तल को नई जाए सीतामाता बरणमाला पिंधे देले पुणी कई कई मत दियंती भाउज चिंतित अवस्था रही लक्ष्मण बुद्धि प्रयोग कले भाई निकट को गले प्रणाम कले जेतेबेले लक्ष्मण भाता प्रणाम कले श्रीराम कौन करेंगे भाई को उठेबे ना जेतेबेले लक्ष्मण को मुंड नुआई उठेबा को चेष्टा कले उच्चता कमीगला सीतामाता बरणमाला पिंधे देले यही प्रसंग रही वर्तमान राम सीतांकर मिलन घटी ना जदि शिवधनु भग्न न हुई था यही प्रक्रिया हुआ कि कदापि नुह यही सबू कारण हेतु भगवान माया रचना कले पुणी अद्भुतमय माया माध्यम से शिवधनु को भग्न कले यही सब प्रसंग रही एति कही आज विरति नौची। जय जगन्नाथ।